Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you all are fine. Welcome to the science class. Dear students, this is your science book which is Science Fact File 1. Today we are going to start the chapter number 4 which is electrical circuits. First of all, what is electrical circuits? Dear students, electric circuit is a path for transmitting electric current. An electric circuit includes a device that gives energy to the charged particles consisting the current such as battery or generator. Devices that use current such as lamps, electric motors or computers. And the connecting wires or transmission lines as you see in the image. So let's start reading and understand the concepts which is given in this topic. We depend on electrical devices to do work for us. First of all, what is electrical devices? Dear students, here you can see the electric devices which we use in daily routine. An electric device is one that directly uses electrical energy to perform a task. Instead of just converting electrical energy into light, heat, or motion, electronic devices are designed to manipulate the electrical current in ways that adds meaningful information to the current. Dear students, हम जब कोई भी अपना काम करते हैं तो हम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है तो हम कंप्यूटर के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड हो जाएंगे. Dear students, the photographs which is shown on this page, they are some of the electrical appliances which we use in our homes. Each one converts electrical energy from one form to another. They are energy changers because they convert the energy which is electrical energy into another form in the form of light, heat, sound and kinetic energy, etc. Dear students, here you can see the different examples of electrical devices. The first one is torch, which converts electrical energy into light. And the another example is electrical generator, which converts electrical energy into heat. And this electrical device we use in our home. And the next one is electrical brush, which converts electrical energy into kinetic energy. We know that kinetic energy is produced due to the motion, and when the electric brush rubs to the another body, they produce the kinetic energy. And the next one is loudspeakers, and that is convert electrical energy into sound. And the next one is electric bulb, and this electric bulb converts electrical energy into light and heat. Dear students, इलेक्ट्रिक बल्ब की आउटर सरफेस जो है वो हीटअप होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी और हीट में चेंज कर देते हैं. Dear students, notice that each electrical appliances need to be connected to a power supply. Some have batteries, other must be plugged into a socket connected to the main supply. Dear students, जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस होती हैं उनको चलने के लिए, वर्कआउट करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे मोबाइल हैं, इन मोबाइल्स में इनको चलने के लिए, काम करने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जो कि हमने इनको इन द फॉर्म ऑफ बैटरी दी हुई है. कुछ होते हैं जो मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड होते हैं और कुछ की क्या होती हैं, बैटरीज़ होती हैं. लाइक टेलीफोन्स, टॉर्च, इनकी बैटरीज़ हैं. जबकि अगर हम बात करें तो फैंस, मशीन्स,
इनकी क्या है, ये हम कनेक्ट करते हैं इनको मेन सप्लाई के साथ। वार्निंग, रिमेंबर दैट इट इज़ नेवर सेफ टू एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई। डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स मेन सप्लाई के साथ कनेक्टेड है तो आप उसके ऊपर कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए क्या है, डेंजरस है। इलेक्ट्रिक शॉक कैन किल। एट होम यू कैन एक्सपेरिमेंट सेफली विथ द टाइप ऑफ बैटरी यूज्ड इन टॉर्च एंड बाईसाइकिल लैंप्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में टॉर्च और बाईसाइकिल्स के जो लैंप्स हैं और टॉर्च की जो बैटरीज़ हैं, इन पे सेफली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर लो वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी होती है। In the laboratory, you may use a low voltage power supply or transformer which plugs into the mains. Always follow your teacher's instructions. Students, जो आप लेबॉर्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, उसका जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और आपने क्या करना है कि आपने जब भी कोई लेबॉर्ट्री के अंदर कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो आप टीचर्स की जो इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको क्या करना है, हमेशा फॉलो करना है। द नेक्स्ट वन इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, उसे हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स। मोस्ट मटेरियल्स आर आइदर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। द टेबल शोज सम एग्जाम्पल। कंडक्टर्स, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, कार्बन। These are the metals and they allow the electricity to pass through them. That's why they are conductor, while glass, rubber, wood, plastics are insulators because they don't allow electricity to pass through them. Good conductors such as copper are used when good electrical flow is needed. For example, in electric wiring, डियर स्टूडेंट्स, आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिक वायर्स हैं मोस्टली वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर है और वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से फ़्लो करवाता है। और इस वजह से हम जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है वो मोस्टली कॉपर की यूज़ करते हैं। गुड इंसुलेटर्स आर यूज्ड व्हेन इलेक्ट्रिकल फ्लो इज़ नॉट वांटेड। फॉर एग्जांपल, सराउंडिंग इलेक्ट्रिक वायर्स, electric plugs, sockets and switches, and in glass light bulbs. Dear students, इंसुलेटर्स जैसे कि हम जानते हैं वो वाले सर्किट्स होते हैं जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाते, और हम इंसुलेटर को वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवानी होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं उसकी सराउंडिंग में जो एक प्लास्टिक की शीट होती है वो इंसुलेटर्स की बनी होती है, ताकि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। और जितने भी इलेक्ट्रिक बल्ब हैं उनके सराउंडिंग में ग्लास जो है वो भी इंसुलेटर्स हैं, ताकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ना हो जाए। और इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स एंड स्विचेस, ये भी हमने इनकी आउटर जो सरफेस होती है वो क्या होती है कि इंसुलेटर्स होती हैं, ताकि हम शॉक से बच सकें। इंसुलेटर्स आर इम्पॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइसेस। देयर इज़ आल्सो अ ग्रुप ऑफ मटेरियल्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, semiconductors are materials which have a conductivity between conductors and non-conductors or insulators. They have special properties when it comes to allowing electricity to pass. Silicon is good example. Semiconductors are used in microchips for computers. Dear students, here you can see the microchip, which is also called a chip, a computer chip, or an integrated circuit, is a set of electronic circuit on a small flat piece of silicon. Dear students, here you can see a diagram, and the diagram shows a circuit
that can be used to test whether a material is a conductor or an insulator. डियर स्टूडेंट्स, इस सर्किट के ज़रिए से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये क्रोकोडाइल क्लिप्स कंडक्टर है या इंसुलेटर है. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोवाइडेड बाय अ सेल एंड switch control the circuits. If the test material is conductor, the bulb will light when the switch is on. Dear students, अगर ये क्रोकोडाइल क्लिप्स कंडक्टर है तो स्विच के ऑन होते ही बल्ब ऑन हो जाएगा. और अगर क्रोकोडाइल क्लिप्स जो कि टेस्टिंग मटेरियल है, अगर ये इंसुलेटर है तो स्विच के ऑन होने से बल्ब ऑन नहीं होगा, जिससे हम ये बता सकते हैं कि जो हमारा टेस्टिंग मटेरियल है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ सर्किट डायग्राम्स ऑन द पेज नंबर 52 ऑन द टेक्स्ट बुक. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स इन अ सर्किट. Also, if a person is not a good artist, other people may not understand the drawings. Scientists and electrical engineers use symbols to represent the parts of an electrical circuit. The diagram below right uses some of the standard symbols. Dear students, अगर हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इंटरनल स्ट्रक्चर की वर्किंग के बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी पहले करें. जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना चाहते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स कहाँ कहाँ है मौजूद और उनका स्ट्रक्चर कैसा है. फिर ही हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर की वर्किंग के बारे में जान सकते हैं. इसी तरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के इंटरनल स्ट्रक्चर को जाने बगैर हम उसकी वर्किंग के बारे में नहीं बता सकते. इसलिए हम पहले उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, फिर हम उसकी वर्किंग के बारे में स्टडी कर सकते हैं. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम टॉर्च के इनसाइड स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, लेकिन इसमें जस्ट हम ये देख सकते हैं कि ये 3 बैटरीज के साथ कनेक्टेड है और एक इसके साथ बल्ब है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि ये वर्किंग कैसे कर रहा है. और कोई भी इतना अच्छा आर्टिस्ट नहीं होता कि वो टॉर्च के डायग्राम या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के डायग्राम एज सच बना दे. इसीलिए साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने सिंबल के ज़रिए से डायग्राम को रिप्रेजेंट करवाया. और हम देख सकते हैं कि सिंबल्स के ज़रिए से जो डायग्राम रिप्रेजेंट करवाई गई है वो हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी. इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि टॉर्च में फ्रंट साइड पे बल्ब था, तो सिंबल डायग्राम में भी फ्रंट साइड पे बल्ब है. और ये बल्ब 3 बैटरीज के साथ कनेक्टेड है, जस्ट लाइक टॉर्च के इंटरनल स्ट्रक्चर के मुताबिक. और इसके साथ एक स्विच है और जो कि आपस में वायर के साथ कनेक्टेड हैं. डिड यू नो सेमीकंडक्टर्स आर गुड कंडक्टर्स व्हेन हॉट बट पुअर कंडक्टर्स व्हेन कोल्ड. सेमीकंडक्टर्स जब हॉट होते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर होते हैं, जबकि वो कूल स्टेट में जब होते हैं तो वो पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर रहे होते. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टेस्ट योर सेल्फ ऑन द पेज नंबर 52 ऑन द टेक्स्ट बुक. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1, A part is, what is an electrical conductor? The answer is, an electrical conductor is the material which allows electricity to pass through it. The B part is, what is an electrical insulator? The answer is, an electrical insulator is the material which does not allow electricity to pass through it. The second question is, name 3 electrical conductors and 3 electrical insulators. The answer is, electrical conductors are metals, graphite, carbon, and electrical insulators are glass, rubber, and wood. Question number 3 is, explain why plugs, sockets, and switches are made of plastic. The answer is, they are made of plastics because plastic is an insulator and does not allow electricity to pass through it. Question number 4, A part is, draw an electrical circuit consisting of a battery, 2 wires, and a bulb.
Dear students, here you can see the circuit diagram which include battery, bulb and two wires. Question number 4 B part is, what could you add to this circuit to control the bulb? And the last question is, what could you add to this circuit to control the bulb? आप इस सर्किट में क्या चीज़ ऐड करेंगे कि वो बल्ब को कंट्रोल करें? We know that a switch is added to this circuit to control the bulb. I hope you understand the concepts which is given in this topic. Keep praying for your country and stay safe at your homes. Thank you so much. Allah Hafiz.